Hello viewers, I welcome you all in my new lecture which is based on the transitive closure, and this transitive closure is calculated for the graph data structure. So let us see. Now first of all, the question is why we find the transitive closure. The transitive closure is a method which is used to check the connectedness of the graph. Connectedness means whether the graph is connected or not. Means if there is a path from any node to any other node in the graph, it means this graph is a connected graph. For example, you can see the green graph on your screen. Here you can move from any node to any other node. For example, you can move from A to B, A to C, A to E, A to F, and A to D. Similarly, you can move from B to every other node. Similarly, from C, E, F, and D. From every node, there is a path to other node. Therefore, this is known as a connected graph. But in the right side, you can see that the red color graph is not a connected graph. If we link R with X, then it will be connected. But in the present condition, this is not a connected graph because you cannot move from P or Q or R or S to any of the vertex X or Y or Z. Similarly, you cannot move from X or Y or Z to any of the vertex from R, S, Q, and P. Means there is a no linkage, therefore it is a disconnected graph. Now the question is how we find the transitive closure. So there are many methods. First of all, we see the method for finding the transitive closure, which is based on the matrix multiplication method. So the transitive closure can be obtained with the formula a plus a square plus a cube plus a4 up to a to the power n, where n is the total number of vertices in the graph. For example, if there are 3 vertices, then we have to calculate transitive closure equal to a plus a square plus a cube only. If there are 4 vertices, then we have to include TC is equal to a plus a square plus a cube plus a4, not beyond that. So we can say that A is the adjacency matrix. As we have already denoted A as an adjacency matrix, means the matrix where we have the information of path length 1. अगर आप किसी नोड से किसी दूसरे नोड के थ्रू किसी एक नोड से किसी दूसरे नोड तक एक सिंगल एज के पाथ के थ्रू पहुंच सकते हैं, तो केवल उन्हीं की एंट्री 1 होगी, बाकी सारी एंट्रीज 0 होंगी. तो ए हमारी बेस मैट्रिक्स है जिसको हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स कह रहे हैं और कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं. ए एडजेसेंसी मैट्रिक्स के साथ साथ इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द पाथ्स ऑफ लेंथ 1. लेंथ 1 मींस कि अगर एक नोड से दूसरे नोड पर जाने तक हमारे उन दोनों नोड के बीच में केवल एक सिंगल एज होगी, तो उसे कहेंगे पाथ लेंथ 1. सिमिलरली A2 is the matrix which gives the information of all the paths of length 2 and so on. And n is the total number of vertices, as I have told you earlier. So let us take an example to understand the calculation concept of the transitive closure for any graph. So here we have taken one graph is directed graph and another one is the undirected graph. So first of all, we calculate the transitive closure for the undirected graph. There are 4 nodes A, B, C, and D. All are connected, but how can we confirm the connectedness with the help of the mathematical concepts or with the help of the matrix? So since there are 4 nodes, therefore the formula of the transitive closure can be written as TC is equal to A plus A square plus A cube plus A to the power 4. We have started from the adjacency matrix. First of all, we have to calculate the adjacency matrix. So to calculate the adjacency matrix, focus on the graph. We cannot move from A to A because
there is no single edge path. We can move from A to A. We can go from A to B and then come from B to A. But the path length will be 2, A to B and then B to A. But in the adjacency matrix, we have to give information about those paths where the path length is 1. So we cannot move A to A with the path length 1. Therefore, this entry is A to A is 0. Again, A to B. We can move A to B with the help of a single edge path, means A is adjacent to B. So this entry is 1. Similarly, we cannot move from A to C with a single length path. Therefore, this entry is 0. And similarly, the entry for the D is also 0. Now we come to the B. From B, we can move only 2 nodes through a single edge path, B to A and B to C. Therefore, B to A and B to C is 1 and all other entries are 0. Now come to the C. From C, we can move only 2 nodes, B and D, through a single edge path or through a path length 1. So C to B is 1 and C to D is 1. Only 2 entries are 1 and other entries are 0. Similarly, we write for the D, because from D we can move only to C with the help of a single edge path. So D to C is 1. So we have constructed the adjacency matrix A. Now we compute A square. So A square can directly be written as this one, because A2 means A2 gives the information of all those paths of length 2. If we can move from A to A with a path length 2, then this entry will be 1, otherwise this entry will be 0. This is one of the method, and matrix multiplication method is described in further slides. So first of all, see the direct method of calculation of A2. A2 means, again I want to tell you, A2 means the path length of 2 from any node to any other node. For example, if A to A path length 2 exists, then we write 1, otherwise 0. अब यहाँ पर आप देखिए A से A हम जा सकते हैं, A से B पर जाएं, B से A पर वापस आ जाएं, तो देखिए 2 पाथ लेंथ कवर हो गई, A to B एंड देन B to A, मींस 2 पाथ लेंथ एग्जिस्ट कर रही है A से A के बीच में, तो ये हमने 1 कर दिया। अब सेकंड देखिए A से B आप सिंगल एज के थ्रू जा सकते हैं, या जैसे A से B चले गए तो पाथ लेंथ 1 हो गई, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप A से B, फिर B से A, फिर A से B, तो पाथ लेंथ 3 हो गई, मींस 2 पाथ लेंथ के थ्रू आप A से B मूव नहीं कर सकते, तो ये एंट्री हो गई 0। अब ये थर्ड एंट्री देखिए, A to C हमने 1 लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि आप 2 पाथ लेंथ के थ्रू C पर पहुंच सकते हैं। A से B पाथ लेंथ 1 हो गई, फिर B to C पाथ लेंथ 2 हो गई, मींस ये 2 पाथ लेंथ 2 का एक पाथ अवेलेबल है A और C के बीच में, इसलिए एंट्री 1 हो गई। D पर देखिए 1 2 3, तो 2 का लेंथ का कोई पाथ नहीं है, इस वजह से ये एंट्री 0 है। ऐसे ही आप B पे देखिए, B से आप केवल D पर या फिर बी पर ही वापस आ सकते हैं 2 पाथ लेंथ के थ्रू, कि बी से सी पर जाइए, सी से वापस बी पर आइए, यानी कि बी से आप बी पर ही पहुंच गए 2 पाथ लेंथ के थ्रू, इसीलिए बी से बी वाले को 1 लिखा है। या फिर बी से सी और सी से डी चले जाइए, यानी कि बी से डी आप पहुंच गए 2 पाथ लेंथ के थ्रू, जितनी एजेस आएंगी वो उसकी पाथ लेंथ काउंट होगी, तो इसलिए 2 एंट्रीज 1 है, बाकी सारी 0 है। ऐसे आप सी से देखिए, सी से आप ए आ सकते हैं, तो ये एंट्री 1 हो गई, और सी से सी पर ही आ सकते हैं, सी से बी पर जाइए, बी से वापस सी पर आ जाइए, तो 2 पाथ लेंथ कवर हो गई, पाथ लेंथ बी टू सी 1 एंड बी टू सी 2, तो ये भी हो गई एंट्री 1, बाकी सारी 0 है। ऐसे आप डी के लिए देख सकते हैं, तो ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और आप A2 मींस A इंटू ए, तो देखिए उसको हमने वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ शो कर दिया है कि अगर A2 कैलकुलेट करने का 2 मेथड था, पहला मैंने आपको ये बता दिया कि डायरेक्ट आप ग्राफ को देख करके जितने 2 पाथ लेंथ वाले पाथ हैं उन्हीं को नोड से उन्हीं की एंट्री को 1 दिखाइए, बाकी को 0 कर दीजिए, या फिर जैसे नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसा मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए का डेटा हमारे पास था ही, जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमने निकाली थी, उसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रो ये कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ये मिल जाएगा, फिर ये रो अगले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वैल्यू मिल जाएगी। तो जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो देखेंगे यही सेम वैल्यूज मिल रही है जो आपको इस वाले मैट्रिक्स में मिली थी, तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट आप लिखेंगे तो टाइम सेव होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। सिमिलरली आप A3 देखिए, A3 means a matrix which gives information of all the paths of length 3.
अब आप देखिए A टू A क्या 3 पाथ लेंथ पे आ सकते हैं, तो A से B जाइए, B से A आइए, तो ये तो 2 पाथ हो गया। फिर वापस B से चले जाइए और फिर B से A आ जाइए तो 4 हो गया। यानी कि 2, 4, 6 इनके पाथ तो अवेलेबल हैं A से A तक, लेकिन ऑड लेंथ का कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। इसीलिए A टू A का 3 लेंथ का पाथ कोई ना मिलने की वजह से हमने इस एंट्री को 0 लिख दिया। अब ऐसे आप A से B चेक करिए, A से B आप 1 पाथ लेंथ के थ्रू भी जा सकते हैं और B से वापस आ जाइए, अब पाथ लेंथ हो गई 2, फिर वापस चले जाइए, अब हो गई 3। फिर से बताता हूँ, A से B 1, फिर B से वापस आ गए 2 और A से फिर वापस चले गए 3। तो 1 का पाथ लेंथ अवेलेबल है A से B के बीच में, 3 का अवेलेबल है, 5 का अवेलेबल होगा। मैं जितने ऑड पाथ लेंथ है वो सारे A से B के बीच में अवेलेबल है, लेकिन हम कंसंट्रेट कर रहे हैं 3 पाथ लेंथ पे, तो वो पाथ अवेलेबल है, इसलिए ये एंट्री 1 हो गई। अब आप A टू C चेक करिए, तो A टू C आप 1, 2 केवल 2 के थ्रू जा सकते हैं, या आप ऐसा करिए 1, 2, 3 देन 4। तो सारे इवन पाथ लेंथ अवेलेबल है, ऑड नहीं अवेलेबल है, इस वजह से A टू C हमने 0 कर दिया। सेम लॉजिक के साथ आप बाकी एंट्रीज को भी फिल कर सकते हैं। किसी और को रैंडमली चेक करना हो, जैसे D टू C आपको देखना है, तो D टू C 1 के थ्रू जा सकते हैं, या वापस आके फिर वो चले जाइए तो 2 और जुड़ गया, 1 + 2 3। तो ये पाथ 3 लेंथ का अवेलेबल है, इसीलिए एंट्री 1 कर दी। और दूसरा मेथड आपको मालूम ही है कि आप A3 निकालना है, तो A स्क्वायर मैट्रिक्स आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। उसमें A मैट्रिक्स मीन्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स, नॉर्मल जो फर्स्ट मैट्रिक्स निकाली थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A क्यूब यहाँ से भी मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि ये एंट्री और इसके पहले जो एंट्री मिली थी ये दोनों बिल्कुल सेम है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सिमिलरली हम लास्ट एंट्री A4 हमें कैलकुलेट करनी है। A4 मीन्स all the paths of length 4। जहां जहां 1 है मीन्स वो सारे उनके उनके बीच में 4 लेंथ का पाथ अवेलेबल है। A से A अवेलेबल है, B से B अवेलेबल है, C से C है, सिमिलरली B टू B है, A टू C है। चेक करना चाहिए, जैसे A से C का चेक करिए। A से C आपको जाना 4 लेंथ में, तो 1, 2, 3, 4 ये पहुंच गए हम 4 लेंथ में, तो इस वजह से ये एंट्री 1 हो गई। जबकि A से D आप जाना चाहें तो 1, 2, 3 3 हो गया। और अगर वापस आएंगे 4 और ये हो गया 5, मीन्स या तो 3 का अवेलेबल है या 5 का अवेलेबल है। मिनिमम A से D में 3 पाथ लेंथ को थ्रू आप पहुंच सकते हो, और नेक्स्ट जो होगा वो 5 होगा, फिर 7 होगा। तो इस तरह से आप A से D कम से कम 4 यानी कि इवन पाथ लेंथ के थ्रू नहीं पहुंच सकते। तो ये एंट्री हो गई आपकी 0। ऐसे आप किसी और को भी चेक करते हैं, जैसे B से C चेक करना है। B से C आप या तो 1 के थ्रू पहुंचोगे, या फिर 3 के थ्रू पहुंचोगे, या फिर 5 के थ्रू पहुंचोगे। तो इसीलिए B टू C भी 0 लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपने A4 कैलकुलेट कर लिया। अब केवल आपको A स्क्वायर, A क्यूब और A टू द पावर 4 मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो हमने सारी ये जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है, अब हमने ट्रांजिटिव क्लोजर निकालने के लिए सारी मैट्रिक्स जो हमने अब तक कैलकुलेट की हैं उनको ऐड करना है। तो हमने ऐड कर दिया। ऐड करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि 1 + 1 मिलकर 2 हो जाएगा, या 1 + 1 + 1 मिले तो 3 हो जाएगा। क्योंकि ये अभी जब आपने एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिखी थी तो आपने देखा था कि अगर पाथ अवेलेबल था मीन्स अगर वैल्यू ट्रू थी तो आपने 1 लिखा था, और अगर पाथ अवेलेबल नहीं था मीन्स वैल्यू फॉल्स थी तो आपने 0 लिखा था। तो ये 0 और 1 ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 फॉर फॉल्स एंड 1 फॉर ट्रू। देयरफॉर दिस 1 इज द बिट वाइज ऑरिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर इस एंट्री को ऐड करना है तो 0 और 1 और 0 और 1। और ऑपरेशन में आपको मालूम है कि अगर एक भी एंट्री 1 होती है तो ओवरऑल रिजल्ट 1 आता है, मीन्स ट्रू आता है। 0 या फॉल्स आंसर तभी मिलेगा जब सारी की सारी एंट्रीज फॉल्स हो। तो आप ऐसे चेक करते चलिए, जैसे 0 है, 1 मिल गया तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक 1 मिल गया तो आगे सारे 0 भी होंगे तो भी आंसर 1 ही आएगा। ऐसे नेक्स्ट को देखिए, पहला ही 1 मिल गया तो आपको ये एंट्री और ये एंट्री देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से जब आप ऐड करेंगे इनको तो आप देखेंगे कि हर एंट्री पर 1 मिल जाएगा। यहाँ पर इसकी वजह से 1 मिल गया, सेकंड वाले में इसकी वजह से 1 मिल गया, थर्ड वाले में यहाँ 0 था, यहाँ की वजह से 1 मिल गया, फोर्थ वाले में यहाँ 0 यहाँ 0, लेकिन यहाँ 1 था तो इसकी वजह से 1 हो गया। तो आप इस तरह जब आप सारी एंट्रीज को चेक करेंगे तो देखेंगे कि सारी एंट्रीज 1 आ रही हैं। सारी एंट्रीज 1 आने का मतलब यही होगा कि हमारा ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ है, कहीं से भी कोई पाथ में ब्रेक नहीं है, हम हर एक नोड से किसी भी दूसरे नोड को पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स में जो एंट्री आएगी वो सारी की सारी
1 आ गई। मीन्स अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है और आपको शेप देख के ही पता चल रहा है कि वो डिस्कनेक्टेड नहीं है, तो आप सीधे सारी उसका ट्रांजिटिव क्लोजर अगर आपसे कोई पूछता है तो उसकी सारी एंट्रीज को 1 शो कर दीजिए। मीन्स गिवन ग्राफ इज द कनेक्टेड ग्राफ। नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन where we have given a directed graph. The formula is same. Transitive closure is equal to a plus a square plus a cube plus a to the power 4. सिमिलर मैनर में जैसे एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकाली थी आपने, यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे देखिए आप ए से ए नहीं आ सकते, क्योंकि ए से अगर आप बी पहुंच गए तो बी से वापस ए तक आने का कोई पाथ नहीं है। अब वैसे भी हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो हम तो सिंगल एज के थ्रू सिंगल एज वाले पाथ को ढूंढ रहे हैं, तो उसको अगर सेल्फ लूप होता तो हम ये एंट्री 1 लिखते, लेकिन सेल्फ लूप कोई है नहीं। मींस ए से ए हम सिंगल एज के पाथ के थ्रू, सिंगल लेंथ के पाथ के थ्रू कभी नहीं पहुंच सकते, इसीलिए ए टू ए की एंट्री 0 है। ए से भी देखिए सिंगल एज के थ्रू हम पहुंच रहे हैं, सिंगल लेंथ के पाथ है, इस वजह से 1 है। ए टू सी 1 एंड देन 2 पहुंच तो जाएंगे, लेकिन पाथ लेंथ 2 हो जाएगी और हमें चाहिए पाथ लेंथ 1। चूंकि हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो ये एंट्री हो गई 0। सिमिलरली डी पर भी हम नहीं पहुंच पाएंगे सिंगल एज के थ्रू, तो ये भी एंट्री 0 हो गई। केवल उन्हीं एंट्री को 1 लिखना है जहां पर हम सिंगल एज के थ्रू पहुंच रहे हैं। जैसे बी से देखिए, बी से हम केवल सी पर सिंगल एज के थ्रू पहुंचते हैं, तो बी वाली रो में केवल सी के नीचे वाली एंट्री 1 है। सिमिलरली सी को देखिए, सी से आप बी और डी 2 पर पहुंच सकते हैं, तो सी के सामने देखिए बी की एंट्री 1 है और डी की एंट्री 1 है, और डी से आप कहीं नहीं जा सकते, तो डी की सारी एंट्रीज 0 हो गई। अब जब ए मिल गया तो ए स्क्वायर भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ए स्क्वायर मीन्स a matrix which gives information of all the paths of length 2 only. केवल 2 लेंथ वाले पाथ को ही काउंट करना है, 2 से कम 2 से ज्यादा हमें 0 कर देना है। जैसे ए से ए आना हो तो ए से बी पहुंच के फिर बी से ए तक आने का कोई पाथ नहीं है, मीन्स हम ए से ए 2 पाथ लेंथ के थ्रू नहीं पहुंच सकते, तो यहाँ पर एंट्री 0 लिख दी। ए से बी देखिए, ए से बी हम सिंगल एज के थ्रू पहुंच सकते हैं, और अगर हम ए से बी और कोई पाथ है, ऐसा है नहीं कि हम 2 लेंथ के थ्रू पहुंच जाएं, तो ये भी एंट्री 0 हो गई। ए टू सी हम 2 पाथ लेंथ के थ्रू पहुंच सकते हैं, ए टू बी 1, बी टू सी 2, तो ये एंट्री 1 हो गई। और ए से डी 1 2 3, तो हमें तो 2 पाथ लेंथ चाहिए था, यहाँ तो मिनिमम 3 आ रहा है, तो ये एंट्री भी 0 हो जाएगी। ऐसे आप सब बी के लिए चेक कर लीजिए, बी से आप 2 पाथ लेंथ के थ्रू केवल डी पर पहुंच सकते हैं। अच्छा, खुद पे भी पहुंच सकते हैं, अब ये देखिए, क्योंकि सेल्फ एक तरह से लूप जैसा लगा है कि बी से सी जाइए और सी से वापस बी आ जाइए, यानी कि पाथ लेंथ 1 प्लस 1 2, तो बी से बी भी 1 हो गया और बी से डी ये भी 1 हो गया, बाकी सारी एंट्री 0 है। सी में आप देखिए, सी से आप 2 पाथ लेंथ के थ्रू अगर यहाँ जाएंगे 1 2, तो सी टू सी केवल ये है जो 2 पाथ लेंथ के थ्रू पहुंच सकते हैं, बाकी आप इधर से यहाँ तो चले जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ का भी पाथ होता तो सी टू ए भी करते, लेकिन पाथ एग्जिस्ट नहीं करा, इसलिए इसको 0 कर दिया, ए को भी 0 कर दिया। डी में देखिए, डी में तो 1 2 3 4 किसी से आप नहीं पहुंच सकते, तो उसको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, सारी एंट्रीज को आप 0 फिल करिए। नाउ वी कम टू द मैट्रिक्स A3। एक्चुअली ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स ना होकर के उसका पोर्शन दूसरा है, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स यहाँ नहीं लिखना चाहिए था मुझे, गलती से लिखा रह गया है। आप इसे एडजेसेंसी मैट्रिक्स मत लिखिएगा, केवल A3 लिखिएगा। A3 मीन्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ पाथ लेंथ 3, तो इसको एडजेसेंसी आप नहीं बोल सकते, A3। A3 मीन्स मैट्रिक्स which gives the information of all the paths of length 3 only, A to B, B to C, C to D। तो 3 पाथ लेंथ मिल गया, तो A to D हमारा 1 हो गया। ऐसे आप देखिए A to B पहुंच सकते हैं कि हम 3 पाथ लेंथ के थ्रू, तो देखिए A to B 1, B to C 2 एंड अगेन C to B, तो आप A से B पहुंच सकते हैं 3 पाथ लेंथ के थ्रू, 1 2 एंड देन 3, तो ये एंट्री 1 हो गई। ऐसे आप बी पर आ जाइए, तो बी से आप देखिए 1 2 3, तो बी से सी आप 3 पाथ लेंथ के थ्रू पहुंच सकते हैं, तो ये 1 हो गया। अगर आप ए पर तो आ ही नहीं सकते, अगर डी पर जाना चाहेंगे तो 1 2, और 2 के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता है नहीं, कोई पाथ है नहीं, तो बाकी सारी एंट्री 0 हो गई। सिमिलरली आप सी से देखिए, तो सी से बी पर आने का 1 2 एंड 3, तो ये हो गया, तो ये एंट्री 1 हो गई। अच्छा, डी पर भी देखिए 1 2 एंड 3, डायरेक्ट ना आकर के, एक डायरेक्ट आएंगे तो 1 पाथ लेंथ हो जाएगा,
और अगर 3 पाथ लेंथ चाहिए तो सी से बी जाइए, बी से सी आइए और सी से डी आ जाइए। तो आप देखिए सी से डी पहुंच गए 3 पाथ लेंथ के थ्रू, तो सी से डी की भी एंट्री 1 हो गई। ऐसे आप A4 कैलकुलेट कर लीजिए डायरेक्टली। जैसे आप देखिए ए से सी जाना है तो 1 2 3 4 पहुंच गया 4 पाथ लेंथ पे, तो ये एंट्री 1 हो गई। जबकि बी आप जाना चाहें तो 1 2 3 मिनिमम पाथ 1 का है, फिर 3 का है, और एक बार और अगर आप राउंड लगाएंगे तो 4 5, तो 5 का यानी 1 3 5 7 ऐसे पाथ्स अवेलेबल है। लेकिन हमें 4 लेंथ का पाथ चाहिए जो कि हमें नहीं मिल रहा है, तो एंट्री ए टू बी भी 0 हो गई। ए टू ए तो हम पहुंच ही नहीं सकते, तो वो तो 0 रहेगा ही। और ए टू डी आप देखिए 1 2 3, और उसके बाद वापस आ नहीं सकते, तो ये भी एंट्री 0 रहेगी। डी पर एक बार आप पहुंच गए तो वापस नहीं आ सकते। ऐसे आप बी के लिए चेक करिए, तो बी से ए का पाथ है ही नहीं, तो 0 हो गया। बी से बी चेक करिए, तो बी से सी, सी से बी, फिर बी से सी, फिर सी से बी, तो 4 पाथ लेंथ हो गई, तो ये बी टू बी 1 हो गया। ऐसे आप बी टू डी देखिए, बी टू सी टू बी टू सी 3, एंड देन सी टू डी 4, तो ये पाथ आ गया बी टू डी का 4 लेंथ का, तो ये 1 लिख दिया। ऐसे आप बाकी एंट्री देखेंगे तो बाकी कोई नहीं मिलेगा, केवल सी टू सी मिलेगी। आप इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर चेक करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा पाथ। सी टू सी देखिए 1 2 3 एंड 4, तो ये वहां पर 1 लिख दिया। अब केवल आपको इन वैल्यूज को ऐड करना है, मीन्स और करना है, क्योंकि ये नॉर्मल डेसिमल वैल्यूज ना होकर ये बाइनरी वैल्यूज है, ट्रू और फॉल्स, 0 फॉल्स 1 ट्रू। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए इस तरह की मैट्रिक्स मिल रही है। इसका मीनिंग हुआ कि इसमें इसको बहुत सारी एंट्रीज, अगर एक भी एंट्री 0 आ गई मीन्स वो स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। हम किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ को स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ तभी कहते हैं इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ द ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स इज 1। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसीलिए स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ ये नहीं है। ये इसका ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स जो हमारा फाइनली जो मैं आंसर करना था वो लिख दिया। कंक्लूजन क्या रहा, 0 को देख कर हमने कंक्लूड किया कि इट इज नॉट ए स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। अब इन एनालिसिस का कंक्लूजन लिख दिया, एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज कनेक्टेड if all the entries of its transitive closure matrix are 1। जैसे कि अभी हमने देखा था, जो हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए कैलकुलेट किया था उसकी सारी एंट्रीज 1 आई थी, तभी हमने उसे कनेक्टेड ग्राफ कहा था। और डाईग्राफ के केस में, डाईग्राफ मींस डायरेक्टेड ग्राफ का शॉर्ट फॉर्म है डाईग्राफ, इज स्ट्रांगली कनेक्टेड इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ इट्स ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स आर 1। अगर एक भी एंट्री 0 मिल गई तो उसे हम स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं कह सकते। तो अभी हमने एक मेथड सीखा ट्रांजिटिव क्लोजर कैलकुलेट करने का। अब हम ये देखते हैं कि डायरेक्टली हम इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे अभी तक बहुत सारे स्टेप्स में हमने लिखा ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, सबको कैलकुलेट करने के बाद उनको सम किया, फिर हमें ट्रांजिटिव क्लोजर मिला। लेकिन अगर कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि हमें डायरेक्टली ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स किसी ग्राफ के लिए लिखनी हो, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम वो देखने जा रहे हैं। मीन्स डायरेक्ट मेथड टू कंप्यूट द ट्रांजिटिव क्लोजर। We know that the transitive closure is a square matrix where each entry is either 0 or 1। दो एंट्री होती है, 1 या 0, ट्रू या फॉल्स। तो अब एक फॉर्मूला उसका ये है कि इफ देयर इज ए पाथ, ए और बी दो वर्टेक्स हैं और टीसी हमारी ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स है, तो किसी भी ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स की कोई भी एंट्री 1 तभी होगी इफ देयर इज ए पाथ ऑफ लेंथ 1 और मोर, मींस 1 मिनिमम होना चाहिए, 2 3 4 5 कितने भी लेंथ का हो। if there is a path of length 1 or more from vertex A to B, तो हम उस एंट्री को 1 लिखेंगे। और अगर 1 या मोर का पाथ लेंथ नहीं है, यानी कि उसके बीच में पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो एंट्री 0 हो जाएगी। ये सिंपल सा फार्मूला है। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो डायरेक्टली आप ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। जैसे ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ था, इसी के लिए आपने ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4 निकाल के उसको सम किया था और किया था, फिर मैट्रिक्स निकाली थी। अब हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए ए टू ए अगर सिंगल लेंथ का पाथ है, मिनिमम सिंगल लेंथ का होना चाहिए, बाकी 2 3 4 लेंथ का है तो वो भी 1 ही होगा। तो ए से बी जाइए, बी से 1 आ जाइए, यानी कि ये पाथ लेंथ एग्जिस्ट कर रहा है 2 का, तो पाथ एग्जिस्ट कर रहा है 1 और मोर का, तो 1 हो गई एंट्री। ऐसे ए से बी देखिए 1, तो ये एंट्री 1 हो गई। ए टू सी, ए टू बी, देन बी टू सी, तो ये भी एंट्री 1 हो गई। ए टू डी जाना है, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी एंट्री 1 हो गई।
अब आप बी पर आ जाइए, बी से ए पर भी आ सकते हैं, सी पर भी जा सकते हैं, डी पर भी जा सकते हैं, सारी एंट्रीज 1 हो गई। ऐसे आप सी के लिए देखिए, तो आप सी से ए पर भी आ सकते हैं, सी से बी पर भी जा सकते हैं, सी से डी पर भी आ सकते हैं, ये भी सारी एंट्रीज 1 हो गई। सिमिलरली डी से भी आप सारे नोड पर जा सकते हैं। तो ग्राफ देख के आपको लग रहा है कि हम हर एक नोड से हर एक नोड पे मूव कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली इसकी ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स को आप 111 एंट्री फिल कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली हमने लिख दिया। अब अगर डायरेक्टेड ग्राफ के लिए कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, तो उसको आप देखिए, ए टू बी 1 लेंथ का पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, ए से बी 1 लेंथ का पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने ए से बी की एंट्री 1 लिख दी। लेकिन अगर ए से ए के लिए हम देखें तो हमने 0 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ए से जैसे बी मूव कर जाएंगे तो बी से वापस ए पर आने के लिए कोई पाथ नहीं है, यानी ए से ए हम नहीं आ सकते। अगर सेल्फ लूप लगा होता तो ये एंट्री 1 होती। सेल्फ लूप है नहीं और किसी और नोड से हम वापस ए पर आ नहीं सकते, इसलिए ए टू ए की एंट्री 0 है। ए से बी की एंट्री 1 हो गई, और ए से सी हम पहुंच सकते हैं 1 2 पाथ लेंथ के थ्रू, तो एंट्री 1 हो गई। ए से डी भी हम पहुंच सकते हैं, ए टू बी, बी टू सी, देन सी टू डी, तो ये भी एंट्री 1 हो गई। अब आप बी पर आ जाइए, बी से देखिए आप ए पर नहीं आ सकते, तो ये एंट्री 0 है। बी से बी पर आना हो तो सी पर जाइए, सी से वापस बी पर आ जाइए, तो 1 हो गई एंट्री। बी से सी पर डायरेक्ट पाथ है, 1 हो गई एंट्री। बी से डी पर, बी से सी आइए, सी से डी आइए, ये एंट्री 1 हो गई। ऐसे आप सी को देखिए, सी से आप बी पर तो आ जाएंगे लेकिन ए पर नहीं आ सकते हैं, तो सी से बी वाली एंट्री 1 हो गई, सी से डी वाली एंट्री 1 हो गई, और सी से सी पर ही आना हो तो सी से बी जाइए, बी से सी आइए, तो ये भी 1 हो गया। डी से आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि डी से आप ना तो कोई पाथ ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता, वो सारी एंट्री 0 है। तो देखिए आपने याद करिए, यही मैट्रिक्स हमने लास्ट में कैलकुलेट की थी एक लंबे कैलकुलेशन के बाद, लेकिन हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन आए, अगर पूरा मेथड आपको दिखाना है तो आप ए प्लस ए स्क्वायर वाला जो मेथड बताया था वो यूज करिए। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, डायरेक्टली ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए। अब हम तीसरी अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं, वॉर्शल्स एल्गोरिथम के थ्रू हम कैसे ट्रांजिटिव क्लोजर को कैलकुलेट करते हैं। तो with the help of the Warshall's algorithm, we can easily determine whether there is a path of length 1 or more from any vertex vi to other vertex vj. Means we can easily get the path matrix. Warshall's algorithm जब भी होगी तो वो जो path matrix या ट्रांजिटिव क्लोजर एक ही बात है, एक ही मिलेगा, आंसर एक ही आएगा। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि वॉर्शल्स की एल्गोरिथम क्या है। दिस इज द वॉर्शल्स एल्गोरिथम। सबसे पहले आपको एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है, जैसे हम बिल्कुल कर ही चुके हैं। सिंगल एज के पाथ वाले जितने पाथ हैं उन्हीं की एंट्री 1 रखेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। एडजेसेंसी मैट्रिक्स आप कैलकुलेट करना सीख ही चुके हो। उस एडजेसेंसी मैट्रिक्स को जैसे आप पाथ मैट्रिक्स में असाइन करेंगे तो हमारी इनिशियल पाथ मैट्रिक्स रेडी हो जाएगी। अब इसी इनिशियल पाथ मैट्रिक्स को हमें अपडेट करना है हर एक स्टेप में। k1 to n, i1 to n, j1 to n, ये लूप चलेगा, और ये जो एंट्री आपने बेस यहाँ इनिशियल पाथ मैट्रिक्स आपने कैलकुलेट की थी, यही हर एक इटरेशन के लिए अपडेट होगी। मींस k इक्वल टू 1 के लिए i1 होगा, फिर j1 से लेके n तक वेरी करेगा, तो ये सारे अपडेशन होंगे। पूरी रो मिल जाएगी हमें मैट्रिक्स की। फिर i बढ़ के 2 होगा, फिर उस 2 वैल्यू के लिए भी j1 से n तक वेरी करेगा, फिर ये सेकेंड रो मिल जाएगी। सिमिलरली i जब 3 होगा तो ये थर्ड रो पूरी मिल जाएगी, क्योंकि 1 to n पूरा वेरी करेगा। और लास्ट में मान ली n की वैल्यू 4 है, तो जब i की वैल्यू 4 होगी तो उस 4 के लिए भी j1 से लेकर के और 4 तक रन करेगा, तो हमें ये नेक्स्ट रो मिल जाएगी, यानी कि फोर्थ रो मिल जाएगी, यानी एक मैट्रिक्स हमारी कंप्लीट मिल जाएगी। फिर k की वैल्यू अपडेट होगी, 2 होगी, फिर उसके लिए i1 होगा, फिर j1 से n तक वेरी करेगा। सिमिलरली ये जैसे कि नेस्टिंग ऑफ लूप आपने पढ़ी होगी, समझा होगा, उसी से आपको उसी तरह से आपको सोचना है, और ये हर एक स्टेप में लूप चलता रहेगा और वैल्यूज अपडेट होती रहेंगी। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि वैल्यूज कैसे अपडेट होंगी। जैसे हमने सेम क्वेश्चन ले लिया है जो हम ऑलरेडी इसके लिए कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें इसके लिए पाथ मैट्रिक्स या हमें ट्रांजिटिव क्लोजर कैलकुलेट करना है। यहाँ पर 4 नोड्स हैं, 1 2 3 4, तो n की वैल्यू 4 हो गई। सबसे पहले हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैलकुलेट की। जो नोड एडजेसेंट थे उन्हीं की एंट्री 1 रखी है, जो सिंगल एज के थ्रू जुड़े हुए हैं उनकी एंट्री 1 है, बाकी सारे की एंट्री 0 है। इसी को जैसे हमने P में असाइन किया तो ये हमारी इनिशियल पाथ मैट्रिक्स मिल गई P0। अब इसी मैट्रिक्स को हमें
हर एक इटरेशन में अपडेट करना है। अब देखिए P0 बेस मैट्रिक्स हो गई, P1 कैलकुलेट करने के लिए P0 बेस मैट्रिक्स हो गई, तो P0 हमने यहाँ लिख लिया है और P1 की एक-एक एंट्री को हम कैलकुलेट करते रहेंगे। कैसे? फार्मूला वही है, Pij इज इक्वल टू P1ij। अगर 1th इटरेशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 0th इटरेशन को बेस मान के चलेंगे, तो P1ij इज इक्वल टू P0ij और इन दो वैल्यूज का एंड। अब ij था तो ik और kj हो गया। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था कि यहाँ पर वैल्यू जो एल्गोरिथम में आपने देखी थी, वैल्यू क्या थी? ये 1 था, 1 टू n, 1 टू n, 1 टू n। तो यहाँ पर आप देखिए 1 मीन्स हमें यहाँ 1 2 नहीं दिया हुआ, a टू a दिया हुआ है, तो 1 मीन्स a हो गया। तो जहाँ-जहाँ k की वैल्यू वहाँ हमने a लिख लिया। और ये पहली वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं a टू a, तो ये i भी a हो गया, j भी a हो गया। अब इस a के लिए j वेरी करेगा a, फिर j वेरी करेगा b, फिर j चेंज होगा c, फिर j चेंज होगा d, फिर हमें पूरी रो मिल जाएगी। तो अभी फिलहाल हम a टू a के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें से हम P0 को यहाँ से वैल्यू उठाएंगे और इसमें वैल्यू लिख देंगे। P टू a 0 है, तो ये वैल्यू 0 हो गई। P टू a अगेन 0 एंड P टू a अगेन 0, तो 0 और 0, तो ये 0 0 का एंड 0 और उसके साथ और 0, तो 0 आ गई, तो ये हमने एंट्री फिल कर ली 0। अब अगली वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है a b के लिए, मीन्स i a रहेगा और j b हो जाएगा। ये देखिए i j a b, तो ए बी, तो जहां जहां जे है केवल वहीं चेंज आएगा। जैसे यहाँ जे था तो यहाँ बी आ गया, और यहाँ लास्ट में जे है तो यहाँ बी आ गया। के पूरे इस पूरे कैलकुलेशन के लिए के फिक्स रहेगा 1 यानी कि ए। तो इसको भी आप कैलकुलेट करिए। इसमें केवल वैल्यूज आपको ध्यान से देखनी है और उसका एंड और परफॉर्म करना है। ए टू बी 1 था तो 1 लिख लिया, ए टू ए 0 था, यहाँ 0 लिख लिया, ए टू बी 1 था, 1 लिख दिया। 1 और 0 का एंड 0 हो गया, और 0 और 1 का और तो 1 हो गया, तो ये एंट्री हमने 1 फिल कर दी। ऐसे आप देखिए बाकी सारी एंट्रीज को। अगली बार जे बी से चेंज होकर सी हो जाएगा, तो उसकी जो कैलकुलेशन है P0 से वो वैल्यू उठाइए, आप उसको एंड और ऑपरेशन परफॉर्म करिए और आप ये फिल करते जाइए। अब ये लास्ट में डी के लिए हो गया। जब जे ए से लेकर डी तक वेरी कर गया तो देखिए एक रो पूरी आपको मिल गई। अब की बार क्या चेंज होगा? अब की बार आई चेंज होगा, बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट आई चेंज होकर बी हो गया, और जे अब फिर ए से लेकर के डी तक वेरी करेगा। तो पहले बी ए के लिए निकाला, तो जहां आई था वहां बी लिख दिया, और जहां जे था वहां ए लिख दिया। के अभी कोई चेंज होगा नहीं, चूंकि पूरे इटरेशन में के की वैल्यू ए ही रहेगी। तो इसको भी आप देखिए कैलकुलेट करते जाइए और यहाँ पर वैल्यू फीड करते जाइए। सिमिलरली हम कैलकुलेट करते गए और वैल्यू को फिल करते गए, और लास्ट में ये डी जब कैलकुलेट कर लिया तो हमारा P1 कैलकुलेट हो गया। अब P1 कैलकुलेट होने के बाद P2 कैलकुलेट करेंगे, तो P2 कैलकुलेट करने के लिए P1 हमारा बेस हो जाएगा। तो देखिए P2 के लिए ये P2 था, तो यहाँ पर हमने P1 को बेस बना लिया। जो अभी P1 मैट्रिक्स हमें मिली थी, ये इसको हमने P0 की जगह लिख ली और यहाँ पर P2 को ब्लैंक स्पेस ले लिया। अब की बार K चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2 के लिए कैलकुलेट करें। 2 मीन्स A B C D 4 नोड थे, तो 2 मीन्स B के लिए अब कैलकुलेट करेंगे, तो K इज इक्वल टू 2 या B, एक ही बात है। तो अब जहां जहां K था वहां देखिए B। पिछले पूरे राउंड में K की वैल्यू A थी, अब की बार K की वैल्यू B हो जाएगी। और I और J उसी तरह वेरी करेंगे। पहले I को A फिक्स कर लेंगे, तो J A से लेकर D तक वेरी करेगा, फिर I चेंज होकर B होगा, फिर J A से D तक वेरी करेगा। तो यानी कि मिलेगा क्या हमें? PAA, फिर AB, फिर AC, फिर AD, उसके बाद BA, BB, BC, BD, ऐसे CA, CB, CC, CD। तो इसी तरह आप फार्मूला लिखते जाइए ध्यान से और इन पे वैल्यू फिट करते जाइए और आपको ये मिलेगा। देखिए जो जो वैल्यूज चेंज होगी, जैसे लास्ट टाइम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C में ये वैल्यू 0 थी, लेकिन इस बार P2 में ये वैल्यू अपडेट होकर 1 हो गई। तो जो वैल्यू अपडेट हुई है उसको मैंने जानबूझ के ब्लू कलर से शो किया है, जिससे आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि कौन सी वैल्यूज चेंज हुई है पिछले इटरेशन के कंपैरिजन में। आप इसको सर्कल भी कर सकते हैं। अगली वैल्यू 0 हो गई, फिर भी 0 मिला, पिछली बार भी 0 थी, तो सेम कलर से शो किया है। ये सारी वैल्यूज ऐसे आपको मिलती रहेंगी, लूप चलता रहेगा। ये वैल्यू फिर C टू C, ये वैल्यू फिर चेंज होगी। लास्ट टाइम देखिए 0 थी और इस बार ये चेंज होकर 1 हो गई है। तो सारी, कई बार ज्यादा वैल्यूज चेंज होंगी, कई बार कम होंगी, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। आपको केवल फार्मूला लगाना है, वैल्यू जो भी आए उसे लिखते जाना है। ये आ गया, P2 कैलकुलेट हो गया। सिमिलरली आप P3 कैलकुलेट करेंगे, तो P3 जब कैलकुलेट करेंगे तो K की वैल्यू 3 यानी कि C हो जाएगी।
और ये फार्मूला फिर उसी तरह से वेरी करेगा। जब 3 कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 हमारा बेस हो जाएगा, तो 2 यहाँ लिख लिया, 3 को यहाँ कैलकुलेट कर लिया। इसको भी उसी तरह फार्मूले से आप कैलकुलेट करते जाइए। देखिए ये वैल्यू डी वाली चेंज हुई, पिछली बार ए डी 0 था, इस बार 1 आ गया, मीन्स ये वैल्यू चेंज हुई, तो उसको हमने ब्लू कलर से शो कर दिया। ऐसे देखिए ये वैल्यू बी टू बी भी चेंज हुई है, अब बी टू डी भी चेंज हो गई, बाकी की वैल्यूज ऐसे मिलती रही, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, केवल ये 3 वैल्यूज चेंज हुई, बी टू बी, ए टू डी और बी टू डी। P3 भी मिल गया। हमें कहाँ तक कैलकुलेट करना है? P4 तक, क्योंकि n की वैल्यू 4 है तो हमें P4 तक कैलकुलेट करना है। तो देखिए P4 के लिए P3 हमारा बेस बन जाएगा, तो P3 को हमने यहाँ लिख लिया। आपको लिखने की जरूरत इस तरह नहीं पड़ेगी, चूंकि आपकी कॉपी पे तो P3 ऑलरेडी लिखा होगा, उसकी हेल्प से आप P4 लिख लेंगे। अब मैंने यहाँ जानबूझ के इसलिए लिखा है जिससे कि मुझे बार बार पीछे स्लाइड बैक नहीं करनी पड़े। सारी वैल्यूज को आप देखिए फार्मूले में फिट करते जाइए और कैलकुलेट करते जाइए। अब मेरे ख्याल से आप ये इटरेशन को समझ चुके होंगे। ये देखिए सारी वैल्यूज चेंज हो गई। तो पिछली बार इस वाले इटरेशन में P3 और P4 में हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला, लेकिन वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी क्योंकि हमें नहीं मालूम कौन सी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब P4 जो कैलकुलेट कर लिया, यही हमारी फाइनल पाथ मैट्रिक्स या यही हमारा ट्रांजिटिव क्लोजर मिल गया हमें। दिस इज द पाथ मैट्रिक्स। अब एक फास्ट मेथड देखते हैं। इसमें देखिए आपको कितना कैलकुलेशन करना पड़ा इस मेथड का। अगर आपको कहीं फास्ट कैलकुलेट करके लिखना है तो आपको लग रहा है कि इतने सारे फार्मूला लिखेंगे, फिर उसमें वैल्यू रखेंगे, फिर उसकी वैल्यू को एंड और करेंगे, फिर जाके मिलेगा। तो कितना बेटर हो कि अगर हमारे पास कोई फास्ट मेथड हो, कोई अल्टरनेट मेथड हो। तो देखिए इसको करने का एक डायरेक्ट मेथड भी है, उसको देखते हैं कैसे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैलकुलेट, जो भी ग्राफ दिया हो उसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिख लीजिए। ये तो बहुत ईजी होता है लिखना, आप समझ ही रहे हैं। जहां पाथ एग्जिस्ट कर रहा सिंगल एज के थ्रू वो 1 रखिए, बाकी सबको 0 कर दीजिए। एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिखने के बाद जैसे जो P0 था वो आपकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो गई। P0 मींस ए को ही P0 में पास कर दिया, तो ये P0 आपकी बेस मैट्रिक्स हो गई एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो गई। अब P0 से P1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जब P0 से P1 कैलकुलेट करना हो तो 1 है, तो जब 1 दिख रहा है तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि फर्स्ट रो यानी 1th रो और फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को एज इट इज P1 में कॉपी कर दीजिए। ये कैसे में कॉपी किया? ये फार्मूला जो भी हमने देख के वैल्यू कैलकुलेट करी थी लास्ट में, उनसे एनालिसिस के थ्रू हमें पता चला कि ये वैल्यूज कभी चेंज होती नहीं। तो इसको और इसको यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एज इट इज हमने कॉपी कर दिया, और जितनी 1 एंट्रीज थी उनको भी कॉपी कर दिया। 1 को कॉपी करने का लॉजिक ये है कि 1 मींस बी से सी के बीच में अगर 1 है तो यानी कि इस बी से सी के बीच में पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तो आगे भी एग्जिस्ट करता रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि अपने आप वो ब्रेक हो जाएगा। इस वजह से जो एंट्रीज 1 है वो 0 में कन्वर्ट कभी नहीं होगी। तो इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने जितनी 1 वाली एंट्रीज थी वो भी कॉपी करा लिया। यानी क्या कॉपी कराया? पहली रो, पहला कॉलम एंड ऑल द 1 एंट्रीज। तो ये 3 1 एंट्री थी, तीनों को यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब जो बची हुई जगह है उनको कैसे फिल करेंगे? जो हमने मार्क कर रखा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, तो इसके और इसके इंटरसेक्शन पे यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है, तो ये 1 और ये 0, इन दोनों का बिट वाइज एंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1 और 0 का एंड करेंगे 0 मिलेगा, तो यहाँ 0 फिल कर देंगे। आपको ये एरो लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने दिखाया कि कौन कौन सी वैल्यू के थ्रू ये वैल्यू मिली है। जैसे यहाँ की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जिनको हमने मार्क कर रखा, उन्हीं दो में से देखेंगे कि किसकी सीधाई में वैल्यू आ रही है, वर्टिकली और हॉरिजेंटली भी। तो 0 और 0 का एंड लेंगे तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली सी टू सी वाली एंट्री देखिए, तो इधर 0 और इधर भी 0, तो 0 0 का एंड 0, तो ये भी 0 हो गया। अब ये एंट्री देखिए डी और बी वाली, तो ये 0 और ये 1, तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे देखिए डी टू सी, तो both entries are 0, therefore and is also 0, and this is again 2 zeros, therefore and is 0। तो ये देखिए हमें पूरी मैट्रिक्स मिल गई। ये सारी चीजें आ गई, कोई इसमें चेंज आया नहीं, अभी सारे 0 आ गए, वही मिल गया जो P0 था वही P1 मिल गया। अब P1 को हमने लिख लिया। अब P1 की हेल्प से हम P2 कैलकुलेट करेंगे। तो P2 ये देखिए कितना फास्ट मेथड है। अभी तो आपको समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, अगर आप लिखेंगे तो आप बड़ी क्विकली लिख लेंगे। अब देखिए P1 था, अब इससे हमें P2 कैलकुलेट करना है। तो P2 कैलकुलेट करना है तो 2 आ रहा है, 2 मींस ये सेकंड रो
और सेकंड कॉलम इनको कॉपी कर लेंगे। तो देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम इनको कॉपी कर लिया एज इट इज, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये हम एनालिसिस से जान चुके हैं कि इनमें कोई चेंज आता नहीं है। ये कॉपी कर लिया। अब ये जो बाकी जगह, अच्छा जो एंट्रीज 1 थी उनको भी कॉपी कर लिया। तो ये 2 1 तो इसी में कवर हो गए, केवल एक 1 ये बच रहा था तो इसको भी कॉपी कर लिया। अभी बाकी के जो ब्लैंक एंट्रीज उनको कैसे फिल करेंगे, 0 और 1 का एंड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। आप देखिए 0 आ गया। ऐसे यहाँ 1 1 तो 1 और 1 का एंड 1 आ गया। अब ये देखिए चेंज हो गया, पहली बार इसीलिए इसको ब्लू कलर से शो किया है। लास्ट टाइम ये एंट्री 0 थी, अभी 1 आ गई। तो आप ये चाहें तो मार्क कर लें, कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं मार्क करना। ऐसे आप देखिए ए और डी एंट्री को कैसे कैलकुलेट किया। जो हमने सर्किल कर रखा है, जो मार्क कर रखा है, उसी के थ्रू देखना है कि उसके हॉरिजॉन्टली वर्टिकली किस कहाँ अप्लाई करा। तो ये उधर 1 मिला, इधर 0 मिला, तो ये 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ कैलकुलेट करना है तो ये 0 और ये 1 देखेंगे, उनका बिट वाइज एंड लेंगे तो 0 मिल जाएगा। देखिए 0 मिल गया। ऐसे ही इधर देखिए तो 1 और 1 तो ये 1 मिलेगा। लास्ट टाइम ये 0 था, अब की बार देखिए 1 मिल जाएगा। ये चेंज आएगा, इसलिए ब्लू कलर से शो कर दिया। ऐसे यहाँ पर देखिए ये 0, ये 0 और 1 तो 0 और 0 0 तो 0। तो ये सारी एंट्री मिल गई। ये P2 मिल गया। इसी P2 को बेस बनाकर अब हम P3 कैलकुलेट करेंगे। तो P3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, P3 के लिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम कॉपी कर लेंगे। तो देखिए थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम, इनको एज इट इज कॉपी कर लिया। और इनके अलावा जितने 1 बच रहे हो उनको ऐसे कॉपी कर लेंगे। तो ये केवल इकलौता 1 बच रहा था, इसको यहाँ कॉपी कर लिया। तो बाकी की एंट्रीज उसी सिमिलर मैनर में कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ की एंट्री है तो ये 0 और ये वाला 1, तो 0 और 1 तो ये 0 आ जाएगा, 0 आ गया। ऐसे देखिए A टू D वाली एंट्री तो 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 और ये 1 तो ये 1 आ जाएगा। बोथ आर 1 देयरफॉर एंड इज आल्सो 1। अब इसमें देखिए 0 क्यों आया, ये 0 था और ये 1 था, डिफरेंट एंट्रीज है तो एंड ऑपरेशन 0 ही देगा। ये 1 क्योंकि ये भी 1 था, ये भी 1 है तो ये 1 आ गया। यहाँ पर भी देखिए 1 ही आएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए 0 और 0 तो 0 आ जाएगा, और 1 और 0 फिर 0 आ जाएगा, और 0 और 1 तो ये फिर 0 आ जाएगा। तो देखिए P3 कैलकुलेट हो गया। कितना फास्ट कैलकुलेट हो रहा है। नहीं तो हम वैल्यूज ढूंढते थे, फिर एंड और ऑपरेशन एंड और करते थे। अब हमें P4 निकालना है P3 की हेल्प से। तो अब की बार फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम को कॉपी करेंगे P4 में। तो P4 लिखा और उसमें फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम कॉपी कर लिया। और जितने 1 थे तो चांस की बात है 1 ज्यादा हो चुके हैं हमारे पास, तो उन सारे 1 को हमने कॉपी कर दिया। तो हमें केवल ये 3 एंट्रीज को कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो मार्क कर रखा है इसके सीध में ये एंट्री आएंगे। यहाँ जैसे ए कैलकुलेट करना है तो ये वाला 0 और ये वाला 1, तो 0 और 1 का एंड लेंगे तो 0 मिल जाएगा। ऐसे भी ये वाला कैलकुलेट करना है तो ये 0 और ये वाला 1, तो 0 1 0 हो गया। ऐसे यहाँ पर भी ये 0 और ये वाला 1 तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अगर आप गौर करें तो देखिए P4 वही मिल गया जिसको हमने कितनी मुश्किल से कैलकुलेट किया था। इसीलिए हमने इसे अल्टरनेट या फास्ट मेथड कहा है, कि आपने पाथ मैट्रिक्स या ट्रांजिटिव क्लोजर कितना इजीली कैलकुलेट कर लिया। सबसे इजी तो आपको वो लगा होगा जिसमें हमने डायरेक्टली सीधे लिख दिया था, इसके पहले जो मेथड पढ़ा था। लेकिन अगर आपको इस मेथड के थ्रू भी करना है तो आप इसको भी बिना फार्मूला लगाए, आप उसी फार्मूले के एनालिसिस से हमें ये बातें पता चली हैं, लेकिन आप इसको डायनेमिक मेथड बोलते हैं और ये आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसे आप सॉल्व करिएगा। आंसर मैंने आपको इसमें स्लाइड में शो कर दिया है। ये गिवन ग्राफ है और इसका आपको इस डायग्राफ का आपको पाथ मैट्रिक्स या ट्रांजिटिव क्लोजर कैलकुलेट करना है। तो जब आप सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, चाहे डायरेक्ट मेथड का या कैसे भी करके लिखेंगे आप, अगर ज़्यादा मार्क्स में आएगा तो आपको थोड़ा प्रोसीजर लेंदी थोड़ा दिखाना पड़ेगा। और अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरत है या कहीं बहुत फास्टली आपको ज़रूरत है कि तुरंत आंसर बताना है, तो आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करके लिख दीजिए। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आप इसको टैली करिएगा, सॉल्व करिएगा, फिर टैली करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।